हेलो, होप यू आर डूइंग फाइन। इतनी लाइटिंग ठीक है ना? सब समझ में आ रहा है ना अच्छे से? In the last video, we understood Raj Yoga from the perspective of a self-realized being. Because only till the time Guru is not present in front of you, you have to pursue Pratyahara, Dharana, Dhyana. But the moment you have Guru's company, now you do not need to perform these actions or these practices because they will happen on their own. Because your mind, the ego, which is the beam of light going outwards, it can sense. The screen and the projections have no idea about it, but that ego, it gets dominated instantly in Guru's presence. So you will not know, but तुम्हारे अहंकार को चेता दिया जाता है विदाउट लेटिंग द डिसाइपल नो। डिसाइपल को पता नहीं चलता और उसके अंदर जो अहंकार है उसको वॉर्न कर दिया जाता है। तैयारी कर लो, सामान बांध लो, जाना पड़ेगा अब तुम्हें यहाँ से, ये हमारी टेरिटोरी है। तो it is the duty of the Guru to put the disciple into Pratyahara and Dharana and to push the mind towards Dhyana. It is the duty of the Guru. Now, there are some problems in this. What are the problems? The problem is all disciples, all disciples want to have fun. भाई बस मस्ती मारनी है, मज़े करने हैं लाइफ में, और क्या काम वाम क्या होता है, कुछ नहीं करना। तो now your desire is to have fun. And Guru knows you are here to do work. So now it's a clash. So what actually happens is, on the surface you are having fun. You think you are enjoying, you are experiencing emotions of all sorts, you are doing activities. But internally, Guru is performing sadhana. So both things are happening at the same time. You have no idea. You have no idea what's happening inside. That's why after some years you realize, oh, that was an important moment in my life, something that occurred years ago. Oh, that was a life-defining moment. I had no clue. क्योंकि अहंकार को चेता दिया गया. So when Guru talks, some things are being said to you, some things are being said directly to the ego. Some things are not being said to you. Some things are being conveyed to the ego. थोड़ा सा मिस्ट्री है, समझ रहे हैं? रात में कर रहे हैं रिकॉर्ड, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विथ वर्स नंबर 16. वर्स नंबर 16 हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, है ना? एक बार फिर से ब्रश अप कर लेंगे. 2-3 वर्सेस आज पढ़ने की कोशिश करते हैं. आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे. नेक्स्ट जो 2 वीडियोस होंगे उनमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे. आज धीरे धीरे.
So, in order to start with Jnana Yoga, because 16th verse, it talks about the effulgent form of the mind when the truth is revealed. So, let me start with my own experience. I told you about this in last year's series as well. So, in 2004, I was in 4th standard, and what happened was I was just sitting, and suddenly I had this thought that this mind is always speaking. But if someone is speaking, there has to be someone who listens as well, right? So now I sat down in meditation, trying to find out who is the one that listens. Now I arrived at peace. This was self-inquiry. सेल्फ इंक्वायरी में ज़रूरी नहीं है कि आप यही बोलें कि मैं कौन हूँ. आप स्वयं के स्वभाव को, अपने रूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना. सो I sat down and I asked myself, who is the one that listens? So I turned away from the direction I was going in, outside. I turned inwards. The moment I turned inwards, there was peace. Complete peace. I think for 10 to 15 minutes, I heard nothing, no thought at all. Sannata. And in that moment, I knew this is who I am. So I knew this is the one who is silent. This is the one who listens. Now, when I came out of self-inquiry, I was completely silent. And for many days, I did not want to eat, I did not want to sleep. एंड स्कूल तो जाना ही पड़ता था, पर स्कूल में बात करनी ही पड़ती है. कोई सवाल पूछेगा टीचर अगर, तो जवाब देना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा. सो दिन का टाइम ऐसे निकल जाता था. फिर हम रात में आकर सोते टाइम सेल्फ इंक्वायरी करते थे. मतलब ऐसा नहीं था कि बार बार पूछना पड़ रहा है, एक बार कर लिया हो गया, बार बार पूछना नहीं पड़ता था. क्या होता था मन में, यार फिर से उसके पास चलते हैं जो सुनता है. तो आँख बंद की और फिर तलाशा, कहाँ हो, कौन सुनता है. फिर वहाँ शांति में पहुँच गए और कुछ देर रहे होंगे, 5 मिनट 10 मिनट. फिर ऐसे गहरी नींद लग जाती थी, इतनी गहरी नींद. फिर 2:30 3 साढ़े 3 4 बजे, तब तो अच्छे से हम घड़ी भी नहीं देख पाते थे, थोड़े स्लो थे. 4th स्टैंडर्ड तक समझ में नहीं आता था टाइम, बड़ा टाइम लगा टाइम समझने में. फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा हमारी 2:30 साढ़े 3 4 बजे नींद खुल जाती है. तो नींद खुल गई, अब डले हुए हैं, अब आँख खोल के वो जो सुनता है उसके साथ पड़े हुए हैं. अच्छा तुम सुनते हो हमें, अब सुन रहे हैं तो कोई विचार ही नहीं है अंदर, है ना. क्योंकि जो सुनता है वो तो शांत है, और हम उसकी शांति, उसकी चुप्पी सुन रहे हैं, तो हम भी शांत हैं. मन भी शांत, आत्मा भी शांत. पढ़े. तो कई साल पूरी रात हमने ऐसे ध्यान में बिताए हैं रातें.
फिर अब हमें पता नहीं कि उसमें से कुछ समाधि थी नहीं थी, अब क्या पता, बच्चों को क्या ही पता चल रहा है ना। फिर वो जो लाइट होती है ना, जो बीम ऑफ लाइट है, वो पूरी तरह टर्न हुई अंदर जब महर्षि मिले। उसके पहले तक हमें प्रयास करना होता था। जैसे अब लेट गए, लेट के आसन ही है, लेट गए, अब रोज रात में चले चले उसके पास जो सुनता है, आँख बंद करके डले, बिल्कुल शांति में पहुंच गए। फिर जब महर्षि मिले तो महर्षि को जाना, समझा। तो प्रत्याहारा और धारणा, ध्यान, प्रत्याहारा और धारणा, दो चीज़ें तो हम पहले ही कर लिए बचपन में। सेल्फ इंक्वायरी हमारी सिद्ध हो गई थी। महर्षि जब मिले तो फिर ध्यान, खुले आँखों से ध्यान होने लगा। डले हैं और महर्षि के बारे में सोच रहे हैं, कैसा अद्भुत गुरु मिला है। खुद को चीता बोलता है, अरे अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कोई बचाने के लिए मिल गया इस खूंखार संसार में। तो फिर हम महर्षि से पूछते थे, भगवान आपने इतना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स क्यों दिए हैं, कोई भी नहीं समझ पाएगा सत्य। आप गुरु हैं और आपने इस तरह से ज्ञान बांटा कि किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा, ये क्या मतलब था, आपने ऐसा क्यों किया भगवान, आप सीधे सीधे भी तो बता सकते थे, पर आपने कहीं पे ये बात बोली, कहीं पे ये बात बोली, इतना घुमा फिरा के, ऐसा क्यों, आपको छुपा रहे हैं, कोई बात आपको परेशान करती है, आपको डर है कि आप कुछ बोल देंगे तो आप खतरे में हैं क्या। हम ऐसे भगवान से पूछते रहते थे। तो गुरु के स्वभाव के ऊपर चिंतन। अब जब पूरी साधना हो ही गई, एक्सक्यूज मी, साधना हो ही गई, आप बचपन में सेल्फ इंक्वायरी हो गई, अब रात में सोते समय पूर्ण शांति है, दिन भर भी विचार कम है, क्योंकि आप रात में इतना ध्यान करें तो दिन भर विचार वैसे ही कम आते हैं। फिर जब महर्षि मिले तो एकदम हम खो गए, क्योंकि उसके पहले तो कई गुरु मिले, सबको हमने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, इतने नखरे दिखाए हमने। और हमारे साथ क्या था कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, हमें पता है हमारे भीतर है, पर कहाँ है। तो ये सब लोग क्या सिखा रहे थे सारे गुरु, अरे यार इस कुर्सी पे बैठने की जगह ही नहीं है, हम संडे को जाएंगे, बढ़िया सा स्टूल और एक कुशन लेकर आएंगे। तो ये सारे जो गुरु हैं वो क्या सिखा रहे हैं कि सत्य तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें पता है परमात्मा हमारे भीतर है, हमें क्या पता नहीं है, हमें बचपन से पता है, हम बचपन से उस परमात्मा के साथ रहे हैं शांति में, पर वो है कहाँ, हम रहे तो हैं साथ, पर वो कहाँ से ऑपरेट करता है, वो है कहाँ। तो हमने अपने लिए एक इतना बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढ के रखा कि जब तक कोई हमें ये नहीं बता देगा कि वो परमात्मा है कहाँ, उसका ठौर ठिकाना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता देगा, तब तक हम उसे गुरु नहीं मानेंगे। अब तुम बने रहो कहीं के भी संत और महंत और जो भी तुम्हें बनना है। हम अपने अड़े हुए थे एकदम। फिर कितने गुरुओं को हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर महर्षि के बारे में पता चला, अब पढ़ा
तो फिर हमने कहा अरे इन्होंने तो लोकेशन बता दी। राइट साइड ऑफ द चेस्ट। मैंने कहा यार ये क्या गुरु मिला है, एकदम बॉम्ब। फिर हमने अच्छे से महर्षि को समझने की कोशिश की। फिर हम ये सारे सवाल करते थे, भगवान आपको कोई खतरा है क्या? आपने क्यों बातों को इतना छुपा के रखा है? क्योंकि हमने भी अपनी सारी साधना छुपा के रखी थी ना, तो हम समझ गए थे कि, और हमने इसीलिए छुपाई थी क्योंकि आसपास सेफ नहीं है बताना। तो हम समझ गए थे कि शायद महर्षि के ऊपर भी कोई खतरा है। तो हम पूछते थे, भगवान बताइए कोई परेशानी है तो हम सॉल्व कर देंगे। आप धरती पर नहीं हैं पर हम तो हैं, हम तो कार्य कर सकते हैं, आप बताइए। तो ऐसे करके खूब कई दिनों तक पूछा। और ये तब पूछा हमने जब हम महर्षि को सुनते थे, और तुरंत ही हमें समझ में आ गया कि खुद से आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट द डूअर। एक्शन लेना है परमात्मा को। सो यू कैन ओनली बिकम रिसेप्टिव, यू कैन ओनली बिकम ओबीडियंट as much as possible। तो फिर हमने जब ये सारी चीज़ें महर्षि को बोली, ऐसा वैसा, उसके बाद उनके जितने भी सीक्रेट्स थे वो धीरे धीरे रिवील होने लगे। अब गुरु के स्वभाव पे अगर आप मंथन करेंगे, आपको गुरु के सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं, सब पता चल जाएंगी। यहीं से गुरु की जो स्टैंडिंग है ना, गुरु की जो स्पिरिचुअल रैंकिंग है, यहीं से रिवील होती है। इसी पॉइंट पे डिसाइपल को पता होता है कि अरे ये तो गुरुओं का भी गुरु निकला, ये अजीब परिंदा है। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे जितने भी महर्षि के ट्रिक्स टेक्निक्स सब पता चलते गए। हमने कहा ये बढ़िया रहा, बड़ा सारा ज्ञान मिल गया। फिर वहाँ से हम रमन आश्रम पहुँचे 2021 में। ये सब 20 से 21 तक हुआ इतना। फिर हम 21 में रमन आश्रम पहुँचे नवंबर में। फिर से एक बार सेल्फ इंक्वायरी करने बैठे, समझ में आया कि नहीं कर पाएंगे। फिर महर्षि को याद किया, तो वो जो 2-3 ऑल्टरनेट स्टेट्स थे उनमें से एक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, और उसी पर हम आगे चलते गए। इतने सफ़र करने में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। क्लियर हुआ कि हम कौन हैं, हम ये शरीर नहीं है। क्लियर हुआ, पर वो माया का जो इल्यूजन है वो डेंस है ना, वो इतनी इजीली ख़त्म नहीं होता। तो वो इल्यूजन मतलब 2021 से हमें 3-4 साल अभी लग गए। अब जाकर वो इल्यूजन सिर्फ आई वुड से 15% 20% रह गया है बस। शायद इतना भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट कॉन्टम्पलेट अबाउट एनीथिंग एल्स, एनीथिंग अदर देन योर ओन एनर्जी। वो जो बीम ऑफ लाइट है ना, ये सोर्स है। बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है,
सोर्स में से हम बाहर की तरफ जाते हैं अहंकार बन के, है ना। तो वो अहंकार अब बस इतना है, इतना रह गया। जितना ज़्यादा आगे होगा आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करेंगे। अब वो यहाँ से बस यहीं तक निकला है तो आप बस इतना सा ही कुछ कुछ कॉन्टम्पलेट कर पा रहे हैं। मतलब विचार इतने 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 से ही आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से ही विचार है, नहीं तो मन खाली है पूरे समय, मन है ही नहीं। आ रहा है समझ में? सो द सेम एनर्जी विच वॉज गोइंग आउटसाइड, that was ego. But the moment it turns inwards and goes back to the source, it becomes soul. So the energy is same. That's why today in the verses we will learn that mind is not real. When one inquires what is this mind, one finds out that the mind is not real. Why do we think the mind is real? Because we have this feeling, I exist, I am alive, I live, I am here. All this is ego, the I thought. So the moment you contemplate on the I thought, it vanishes. So in 17th verse, Maharishi is saying, Manasam tu kim margane krite nev manasam marg arjuvat. The moment one inquires about the nature of the mind, one realizes that the mind is not real. Because when you are going outside, you are perceiving the world. But the moment you stop and you start to contemplate about your own nature, now you are not looking at the world. Now you are looking at your own self. So now there is no movement. When you are looking at the world, there is movement. When you are looking at your own self, fully absorbed in your own self, there is no movement. Now you are Brahman. So mind is not real. Mind does not exist. I can say this from my own experience. Mind is not real. Because the moment I asked myself, कौन सुनता है? सुनने वाला कौन है? भीतर एक है जो कहता है और दूसरा है जो सुनता है. The moment I found the one who listens, the one who speaks became silent. It became non-existent. विचार बहुत कम हो गए, बहुत कम. Okay. Now next verse is Vrittaya swaham vrittamashita Vrittayo manoh vidyaham manah. Verse number 16 we already completed in the last video. So today we have started with verse number 17 and now we are studying verse number 18. So in verse number 18, Maharishi is saying, mind is nothing but a bundle of thoughts. The moment you inquire, what is this mind? All thoughts vanish. This bundle of thought depends upon the I thought. I exist.
The moment you stop, the moment you stop focusing on that I, the false I, and you look for the real I, mind becomes non-existent. Are you getting it? थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा। अभी बस आदत डालनी है, इस कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की आदत डालनी है। दैट्स इट। योर ईगो विल रिवोल्ट कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे ये सब नहीं समझना। मैं अपने स्वयं के स्वभाव को क्यों जानूं जब जानने के लिए दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं। You see, but even those thoughts should be challenged. All thoughts have to be challenged. This is real पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ये नहीं है कि आप गुंडों से लड़ लिए, किसी पे चिल्ला दिया, आप डिसेप्शन, मैनिपुलेशन सीख गए अच्छे से। दैट्स नॉट पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ इज व्हेन यू आर केपेबल ऑफ डिस्कार्डिंग थॉट्स। Because thoughts come with juiciness. Thoughts have emotions. Thoughts have pleasure. So, what does samsara do? Samsara keeps on draining your psychic energy. But when you think about the Guru, you send psychic energy to the Guru. Guru sees you have sent energy. Guru transmutes the energy and send it back to you. Whereas what does samsara do? Samsara will capture your attention, make you think of things, objects, places, etc. Drain your energy and not even send it back to you. It has been taken from you, it has been drained. But because Guru कुछ लेते नहीं हैं, Guru सिर्फ देते हैं. So whatever you are giving, you will receive it back. So now when you send energy, Guru sees the content. ज़रूरी नहीं है कि कॉन्शियस माइंड को हर वक्त पता रहे, ज़रूरी नहीं है। इतने सारे डिसाइपल्स होते हैं, कितनों के कॉन्शियस माइंड का आप बही खाता रखेंगे, है ना? बट द प्रोसेस कीप्स ऑन हैपनिंग. Energy comes, it gets transmitted and you receive it back. So you are receiving soul energy from the Guru. Verse number 19. अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहं निज विचारणम्. So here Maharishi is saying, when one inquires from where this I thought arises, in the last verse we studied that mind is nothing but a bundle of thoughts, and this bundle of thoughts, which are projections, they are dependent upon the I thought, which is the ego. Now in this verse we are understanding that
when you ask yourself from where this I thought is arising, it will vanish. These thoughts, this I thought also will vanish. This is self-inquiry. So in self-inquiry, you are targeting the beam of light. You are not targeting the projections. In all other sadhanas, you are only dealing with the projection. You are being prepared. You are being prepared for self-inquiry in all other sadhanas. That's why at the end of all sadhana, you have to perform self-inquiry. In the last video, we saw the example of mantra jap, right? While you are pronouncing the mantra, उच्चारण जब आप कर रहे हैं, what happens is you get lost. अगर मंत्र जाप आपका सिद्ध होता है, you get lost in it. Now once you are lost in it, when you come out of it, only then you know, I was in peace. I experienced peace. However, in self-inquiry, when you arrive at peace, you know, I am at peace. You are fully conscious. Your eyes are not covered. Whereas in all other sadhanas, your eyes are covered. Guru has to enter your psyche, turn on the light, and then remove your hands from your eyes and to show you. And then Guru shows you, look at this light. Okay. Next verse. Ahami nash bhajya yaham maham taya स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत. This one is one of my favorite verses in this entire 30 verses. When the I thought or ego is destroyed, the real I springs forth on its own in the spiritual heart and shines as I in low storage phone में slow down. And shines as I in all its fullness. So this is what I experienced in 2021 when Sphurana occurred. जैसे भीतर से झरना फूटा हो. Now I didn't experience Sphurana while I was a kid. I didn't. अब हुआ और हमने ध्यान ना दिया, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, नहीं महसूस नहीं किया. तो जैसे ही मन शांत हुआ, peace appeared. Because हमारी आँखें हैं ना, हमारी आँखें मेटाफिजिकल को छुपाती हैं, मेटाफिजिकल रेल्म को. Your eyes are an obstacle for you to enter metaphysical. Because when one of your eye is closed and one is open, you cannot see darkness. You can see darkness only when both eyes are closed. Right? So your eyes hide the metaphysical. And the metaphysical hides Brahman. So the mental realm, it hides Brahman. But when the
mental realm itself vanishes, and there is no movement, there is nothing, just complete peace. What happens is your real nature, Sphurna, I, 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 it comes up. So now Maharshi, that's why he is so legendary, because he broke off the conditioning. The moment Sphurna occurred, he broke off the conditioning that you are this body. And he instantly associated himself with Sphurna, which I haven't been able to do completely till now. Completely. You see? And he could do it in just like 4-5 minutes. शायद उतना भी नहीं, जैसे महसूस हुआ वैसे समझ में आ गया. And what's happening with me is gradually that understanding is deepening. This body is not real, this body is not real. That's why so many things occur and I don't panic. बचपन में भी इतना ज़्यादा पैनिक नहीं करते थे, अब तो और भी नहीं. पैनिक करने की एक्टिंग बहुत की है, बिकॉज छलना है, छलिया बनना है, तो लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि हाँ भाई आपकी मैनिपुलेशन काम कर रही है हमारे ऊपर, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत याद करते हैं आपको. हर ओर से हर इंसान लगा पड़ा है अपने डिसेप्टिव स्किल्स को शार्पन करने में. सो ego will die off eventually. जब हमने महर्षि को पढ़ना शुरू किया, हमें समझ में आया अच्छा हम बचपन में पूरा सेल्फ इंक्वायरी कर चुके हैं. अच्छा, फिर हमने कहा भगवान आप तो 16 साल की उम्र में बन गए, सेल्फ रियलाइज्ड हो गए आप, पर हमने भी तो 10 साल की उम्र में कर लिया था ना, फिर आपने हमें क्यों लटका के रखा है अभी तक, हम क्यों नहीं सेल्फ रियलाइज्ड बन गए 10 साल की उम्र में. 10 साल के ही थे, 4th स्टैंडर्ड में, 10-11. Then I realized that what Maharshi did, it is one of the greatest sacrifices a human being can make. Because you know what is the charm of being a human? Emotions, right? Our emotions make this journey worthwhile. अगर इमोशंस ना हो, अगर आप नम है ना, तो जीने का फिर मन भी नहीं करेगा. इमोशंस हैं, मन उसी में लगा रहता है पूरे टाइम, है ना, तो मन उस इमोशन को पकड़े पकड़े चलता रहता है. ज़्यादा कुछ सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं है. सो महर्षि सैक्रिफाइस्ड इमोशंस. ऐसा नहीं है कि कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि सेल्फ रियलाइज बीइंग्स को सब महसूस होता है. बट जो आइडेंटिटी है वो डिसॉल्व हो जाती है. नाउ यू आर ओनली देयर टू सर्व एंड हेल्प अदर्स.
That's it. Now you are not benefiting from your own emotions because you can't even express everything because you have no control over it. If it is meant to come out, your suppressed emotions, if they are meant to come out, then they will come out. If it is not meant to come out, then you are sitting silently. You have no control over anything. चक्रास में ना एयर पॉकेट्स बन जाते हैं. So you can store like huge amount of energy. So in heart chakra, so प्रेमानंद महाराज है ना, किसी वीडियो में बता रहे थे कि अगर मैं रोने पर आऊँगा तो मैं इतना रोने लगूँगा कि मैं फिर चुप ही नहीं हो पाऊँगा. अंदर इतना पेन होता है, बहुत पेन होता है. You can literally feel everyone's pain, your own pain. So now the pain has no outlet because ना कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना पड़े, ना आपके पास उन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए माइंड है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कुछ इवेंट हो गया तो अब उसके बारे में सोच रहे हैं. आप उस चीज़ को प्रोसेस करते जाएंगे और आप उस इमोशन, भले ही वो पेनफुल इमोशन हो, बट यू आर लिविंग इन इट, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट. सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग्स दे डोंट. हो गया उस मोमेंट, जो भी रिएक्शन होगा, देना था तो दे दिया, नहीं देना था तो अंदर ही रख लिया. अब now you have no mind, you can't relive the moment. You have moved past the moment. So he actually made the greatest sacrifice. अगर महर्षि का सेक्रीफाइस 16 इयर्स की एज में महर्षि ने किया सेक्रीफाइस, अपना फॉल्स आइडेंटिटी डिज़ोल्व कर दिया. एंड आई ऑफन थिंक कि 31 के अभी हो जाएंगे हम. हाँ, 31 अभी अगस्त में. सो आई ऑफन यूज टू थिंक कि कितने साल बर्बाद कर दिए. बट देन आई हर्ड फ्रॉम विद इन, Suri, you all are my children. You are my child. How can I let you work more than what I have done? How can I let you be more hardworking than what is required? It has been done. That sort of work has been done. Now you don't have to repeat it. So you enjoy your emotions. You have fun with emotions. And gradually it will fade away. So it actually is fading away. Now कितने साल हो गए? 4-5 साल तो हो ही गए 2020 से. Now I'm only little bit attached to this body. That's it. कितना कुछ हो जाता है, फीवर हो जाता है, ध्यान नहीं देते. पता है फेस पर, क्योंकि इतना ट्रैवल वगैरह किया ना, ये हाइपर पिगमेंटेशन हो गया. ये क्योंकि अभी वहाँ से आए, वहाँ भी थोड़ा बहुत धूप में चलना पड़ा लास्ट के टाइम पे थोड़ा. यहाँ आकर भी इतना कुछ हो गया. ठीक है, सही होना होगा तो हो जाएगा. अभी संडे को डॉक्टर पे जाएंगे,
ठीक होने लिखा होगा तो हो जाएगा। चीज़ें इतनी नॉर्मल हो जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। हाँ ठीक है, देख लेंगे। एक महानुभाव का ईमेल आया है, कह रहे हैं मैडम आपके जैसे गुरुओं के चरणों में मेरा तन मन धन सब अर्पित है। ऐसे मेल मत भेजा करो यार। ना तन तुम्हारा है, ना मन तुम्हारा है, ना धन तुम्हारा है, सब तो पहले से ही हमारा है। और क्या अर्पित करोगे? चुपचाप साधना करो, घर जाओ, बीवी बच्चे पालो, पढ़ाई लिखाई करो, काम करो। ठीक है, रखते हैं। अब लास्ट के 2-3 वीडियोस ऐसे ही जाने वाले हैं ना, शांत शांत ही जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।